ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کے حوالے سے۔ انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کے لیے بڑا دن۔ ملتان ایجوکیشن بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 81,027 طلبہ میں سے 69,851 طلبہ نے کامیابی حاصل کی۔ نتائج میں کامیابی کا تناسب 86.21% رہا۔ بہاولپور بورڈ کی جانب سے بھی انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ 61,465 طلبہ میں سے 53,006 طلبہ کامیاب ہوئے۔ انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ملتان نے انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 81,027 امیدواروں نے حصہ لیا۔ 69,851 کامیاب قرار پائے۔ کامیابی کا تناسب 86.21% رہا۔ پری میڈیکل گروپ میں 22,876 امیدواروں نے حصہ لیا۔ 21,394 کامیاب قرار پائے۔ پری انجینئرنگ گروپ میں 12,223 امیدواروں نے حصہ لیا۔ 11,333 امیدوار کامیاب قرار پائے۔ بہاولپور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ 61,465 امیدواروں نے امتحانات میں حصہ لیا۔ 8,407 طلبہ کو کورونا سے متعلق اسپیشل امتحان کی اجازت دی گئی۔ 53,006 طلبہ پاس ہوئے۔ تناسب 86.24% رہا۔ سرگودا بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کا اعلان کر دیا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 میں 58,446 امیدواروں نے اپلائی کیا تھا۔ تعلیمی بورڈ کے مطابق 52,316 امیدواروں نے کوالیفائی کیا۔ خصوصی امتحان میں 6,129 امیدواروں نے حصہ لیا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈی جی خان کی جانب سے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ کامیابی کا تناسب 88.89% رہا۔ عاشر اشفاق رپورٹ کر رہے ہیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈی جی خان کی جانب سے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ نتائج کا اعلان چیئرمین بورڈ ڈاکٹر کشور ناہید رانا نے آن لائن لنک اوپن کر کے کیا۔ اس موقع پر کنٹرولر بورڈ حبیب الرحمان، ڈپٹی کنٹرولر شیخ امجد حسین اور دیگر بھی موجود تھے۔ اور پوری برانچ، ان کے سپرنٹینڈنٹ اور کمپیوٹر سیکشن، سی ایس او ونگ، تمام نے مل کر دن رات یہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دی ہے، جس کی بدولت ہم آج ایک بہترین ایرر فری رزلٹ دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹ 5 بجے ہم نے ویب سائٹ پہ بھی آن کیا ہے اور ایگزیکٹ 5 بجے ہم نے تمام جو امیدواران ہیں ان کو یہ سہولت دی ہے کہ 800295 پر اپنا جو موجودہ رول نمبر جو ہم نے الاٹ کیا ہے یا جو آلریڈی ان کو پریویسلی جو رول نمبر ایشو ہوا تھا اس کے تحت وہ رزلٹ معلوم کر سکتے ہیں۔ روہی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین بورڈ ڈاکٹر کشور ناہید کا کہنا تھا کہ کامیابی کا تناسب 88.89% رہا۔ رزلٹ نہ ماننے والے طلباء اسپیشل امتحان میں حصہ لے سکتے ہیں۔ 11% ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو اسپیشل ایگزام میں آ رہے ہیں اور اسپیشل ایگزام ہم 10 اکتوبر سے سٹارٹ لے رہے ہیں اور جس کا آپشن فارم جو ہے وہ آج ابھی آن لائن کر دیا گیا ہے۔ اور جن بچوں کو یہ رزلٹ پسند نہیں ہے یا جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ نمبر لے سکتے تھے ان کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اسپیشل ایگزام میں آ سکتے ہیں۔ چیئرمین ڈی جی خان بورڈ ڈاکٹر کشور ناہید کا کہنا تھا کہ اسپیشل امتحان میں حصہ لینے والے طلباء آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسپیشل امتحان 10 اکتوبر سے لیے جائیں گے۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ آپ کو بتائیں شہر اولیاء کے معلم کی بیٹی نے اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ لمیز ظفر نے انٹرمیڈیٹ میں 1047 نمبر حاصل کیے۔ کہا کہ محنت کرنے سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کی لمیز ظفر نے میٹرک میں 1047 نمبر لے کر والدین اور اساتذہ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ لمیز کا کہنا ہے کہ وہ سافٹ ویئر انجینئر بن کر ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے 1047 مارکس لیے ہیں اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ میرے پیرنٹس اور میرے ٹیچرز کا ہے۔ کیا بننا چاہتی ہو؟ میں انجینئر بننا چاہتی ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے ملتان بورڈ میں بوائز میں ٹاپ کیا ہے۔ لمیز کے والد ظفر کا کہنا ہے کہ وہ ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہیں۔ بچوں کی کامیابی نے انہیں عزت دی ہے۔ اس سے قبل ان کے بیٹے نے بھی میٹرک میں 1088 نمبر لیے۔ والدین کا کل اثاثہ بچے ہوتے ہیں اور بچے کامیاب ہوتے ہیں تو والدین کی خوشی دیگنی ہوتی ہے۔ خود میں کچھ بھی نہیں ہوں، اب یہاں بیٹھا ہوں کس وجہ سے بیٹھا ہوں؟ ان بچوں کی وجہ سے۔ ان کے اساتذہ میری عزت کرتے ہیں، دوست جو ملتے ہیں وہ عزت دیتے ہیں کہ ان بچوں کی وجہ سے۔ اساتذہ نے بھی لمیز اور اس کے بھائی علی ظفر کے اتنے اچھے نتائج پر ان کو شاباش دی اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان۔ آپ کو بتائیں حکومتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسکولوں کی شامت آ گئی۔ بہاولگر میں سی او ایجوکیشن اسلم اجاز کی سربراہی میں ٹیم کا تعلیمی اداروں کا دورہ۔
नगर में सीईओ एजुकेशन असलम एजाज की सरबराही में टीम ने कोरोना और डेंगू एसओपीज का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों का मुआयना किया। खिलाफ वर्जी पर 2 स्कूल्स को सील कर दिया गया और दीगर को नोटिस जारी किए गए। मुल्तान के तालीमी इदारों में कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला असिस्टेंट कमिश्नर आबगीने खान ने हामिदपुर और शेरशाह हाई स्कूल का दौरा किया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर गवर्नमेंट हाई स्कूल शेरशाह के हेडमास्टर को जुबानी, जबकि गवर्नमेंट हाई स्कूल हामिदपुर के हेडमास्टर को तहरीरी वार्निंग जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 का दौरा किया। बहाली के हवाले से मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी। सीईओ तालीम शमशेर अहमद, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एजाज अहमद, एसी सदर मलिक राशिद नेमत और दीगर अफसरान मौजूद थे। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बहावलपुर के तालिब इल्म में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर ने तालिब इल्म के डायरेक्ट राब्ते में रहने वाले अफराद की सैंपलिंग का फैसला कर लिया। अहले खाना और इलामात जाहिर होने पर क्लास फेलोज के भी टेस्ट किए जाएंगे। कॉलेज इंतजामिया ने कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद मजीद सख्त कर दिया। और कौमी एयरलाइन के बुकिंग ऑफिस में रश, परवासें कम होने के बायस अमला बेबस हो गया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मुल्तान बाकिर नकवी कहते हैं कि 1 अक्टूबर से कौमी एयरलाइन का सऊदी अरब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मजीद बेहतर हो जाएगा। सऊदी हुकूमत की इजाजत के बाद कौमी एयरलाइन की टिकट्स रखने वाले मुसाफिर शदीद परेशान। परवाजें कम और जाने वालों की तादाद कहीं ज्यादा। कौमी एयरलाइन के दफ्तर में शदीद रश लग गया। बुकिंग न मिलने पर वहाँ आए लोग फट पड़े। बाहरले एजेंसियों वालों को फोन मारते हैं, अभी फोन मारता हूँ 1.5-2 लाख की बोलते रेंज रखो, 1.5-2 लाख की, क्यों ब्लैक बेच रहे हैं। ये इन लोगों ने पीआईए की टिकट एजेंसियों में दे दी है। हम उधर 40 साल से रह रहे हैं मदीना, हमारा रोजी का सिलसिला सारा उधर है। ये छुट्टी हमारा खत्म हो रहा है, ये इनको मेहरबानी करें, भेजें हमको। कौमी एयरलाइन की बुकिंग ऑफिस में मौजूद लोगों का कहना है कि बाहर पीआईए की टिकट्स ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं, जबकि यहाँ इनसे टाल मटोल की जा रही है। कौमी एयरलाइन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मुल्तान बाकिर नकवी का कहना था कि कौमी एयरलाइन की बुकिंग ऑफिस में किसी से 1 पाई भी इजाफी वसूल नहीं की जा रही। हफ्तावार मुल्तान से जिस तरह अभी हफ्तावार 2 जा रही हैं और मदीना की 1 फ्लाइट जा रही है, तो वो भी बढ़ के 4 हो जाएंगी जद्दा की और 2 या 3 हो जाएंगी मदीना की। तो उसमें हमारे पास कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी 30 के बाद। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कौमी एयरलाइन बाकिर नकवी का कहना था कि सऊदी एसोसिएशन ने 11 खसूसी परवाजें चलाने की मशरूत इजाजत दी है। 1 अक्टूबर से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मजीद बेहतर होगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ रजा मलिक, मुल्तान। शहर औलिया में सड़कों की खस्ता हाली हो गई दूर। कमिश्नर मुल्तान का शहरियों की सहूलत के लिए ऐसा इकदाम। एमडीए के जेर कंट्रोल 17 रोड्स की मरम्मत का फौरी हुक्म दे दिया। कमिश्नर मुल्तान ने गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। जावेद अख्तर महमूद ने एमडीए की कारकर्दगी के बारे में जायजा इजलास की सदारत की। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने एमडीए को गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म देते हुए कहा कि एमडीए की मौजूदगी में शहर में गैर कानूनी कॉलोनियों की बरमार इदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कला मंडी, टिम्बर मार्केट, लोहा मार्केट और ट्रक स्टैंड को शहर से बाहर मुंतकिल करने का हदफ दिया। इस सिलसिले में ज़िला इंतजाम और एमडीए मिलकर काम करे। कमिश्नर ने कहा कि एमडीए सरकारी जमीन पर तजावुजात वागुजार कराए। गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए कन्वर्सेशन अप्रूवल और नक्शे मंजूरी का अमल तेज किया जाए। कमिश्नर ने एमडीए के जेर कंट्रोल 17 रोड्स की मुरम्मत एमडीए के हवाले करने का फैसला करते हुए कहा कि जिन रोड से रेवेन्यू एमडीए रिकवर कर रहा है उनकी तज़ीन और आराइश की जिम्मेदारी भी मुतल्लिका इदारों की होनी चाहिए। उन्होंने डीजी एमडीए को रोड की टैकिंग ओवर के बारे में रिक्वेजिशन बनाकर बेचने की भी हिदायत की। कमिश्नर ने कहा कि शहर की अहम शाहराहों की तामीर और मुरम्मत के बारे में लाहे अमल तैयार किया जाए और दाखिले दरवाजे दिसंबर तक हर सूरत मुकम्मल किए जाएं। डीजी एमडीए की जानिब से इदारे के बजट, स्कीमों, मास्टर प्लान और दीगर मामलात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी जाए। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट बकास खाकवानी, डीजी एमडीए चौधरी अनवर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आपको बताएं, आलूदगी से बचाव के लिए डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान का बड़ा फैसला। स्मोक का सबब बनने वाली सरगर्मियों पर पाबंदी का फैसला। पाबंदी के लिए दफा 144 के नफाज के लिए सिफारिशात मुरतब कर ली गई।
डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने बताया कि हुकूमत ने अक्टूबर से दिसंबर तक स्मोक से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत स्मोक का सबब बनने वाली सरगर्मियों पर पाबंदी लगाएगी। दफा 144 के तहत म्यूनिसिपल वेस्ट, फसलों की बकायात और दीगर मोहलिक अशिया जलाने पर कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, सनती इदारों और ईंटों के भट्टों को बंद कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि स्मोक से बचाव के लिए भरपूर आगाही मुहिम चलाई जाएगी। वॉक, सेमिनार, तकरीबात मुनक्किद की जाए, मालूमाती पम्फलेट्स भी तकसीम किए जाएं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इशफाक हुसैन बुखारी ने बताया कि डेरा गाजी खान गुज़श्ता साल स्मोक के हवाले ग्रीन जोन में शामिल रहा। वज़ीर आला के शहर डेरा गाजी खान में जगह जगह तजावुज़ात की भरमार है। दुकानों के बाहर लगे भट्टों ने सड़कों को मजीद तंग कर दिया। चौक चौराहा, पुल डॉट समेत शहर भर में तजावुज़ात कायम हैं। उधर असिस्टेंट कमिश्नर ने तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान का प्लान सिटी इस वक्त तजावुज़ात माफिया के शिकंजे में है। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर मुस्तकिल तजावुज़ात कायम हैं। दुकानों के बाहर लगे भट्टों ने सड़क को मजीद तंग कर दिया है। तजावुज़ात माफिया को इंतजामिया का डर है और न ही जुर्म का एहसास। ये एक रौनक है बाजार के, फट्टा रेडी जब तक नहीं लगेगा बाजार में रौनक नहीं लगती। फिर आप ऐसा करें कि ये थोड़ी बहुत जगह छोड़ी है ना, वो भी बंद करें ताकि रौनक ज्यादा दुबाला हो जाए। नहीं, कोई जहालत तो हमारे अंदर है भी नहीं। गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आपकी ट्रैफिक गुजर रही है। भाईजान रोजी का कोई वसीला हुकूमत हमारे लिए बनाए, हमें कोई जगह दे, हम हटा लेंगे। तजावुज़ात के बायस राहगीर भी परेशान हैं, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। जरा ना भी जगह नहीं मिलती, असा सादा कहना गरीब आदमी आखिर बेचना है, बाल पेट पालना है, असा भी किथे ही नहीं मान सकते। तुहाडे सामने हुण रेड़ियां खड़ी हैं, ठीक है, असां इत्थे ही खड़दे रहंदे हैं। बे जेड़े आ वेंदे ना बाजार चो रेड़ियां छेक के नहीं आउंदे, ओ इत्थे रोड दी आधी खड़ वेंदे। जल्ले कमेटी वाले आउंदे ओ मौके ते निकते वेंदे, फस असां वेंदे हैं वाला। असिस्टेंट कमिश्नर ने रोही को बताया कि तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है, जल्द नताइज सामने आएंगे। तजावुज़ात हैं, ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी है, अक्रॉस पाकिस्तान हर जगह है। इसको देखिए एट वंस हम खत्म नहीं कर सकते, इसको ग्रेजुअली हमने खत्म करना है। अभी एक जगह ऑपरेशन किया है, उसको देखा देखी जो दूसरी उसकी अलाइड रोड्स हैं वहाँ लोगों को जब रियलाइज हुआ उन्होंने खुद अपने शेड उतारना शुरू कर दिए। हमारी अपनी ख्वाहिश भी ये है कि लोगों को खुद से ये रियलाइजेशन हो, बजाय ये कि वो अपना नुकसान करवाएं। चौक चरहट्टा, पुल डाप, सदर बाजार, ट्रैफिक चौक, फरीदी बाजार, प्यारे पुल, अस्पताल चौक और अंदरून बाजार में तजावुज़ात के बायस अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है। कैमरामैन रेहान अली और साथी रिपोर्टर इकबाल और आशिर इशफाक के साथ मोहसिन मुल्क, डेरा गाजी खान। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहर में मौजूद मंडियों की बाहर मुंतकली के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक कहते हैं खसूसी कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट करेंगे रसा मलिक। और लोहा मार्केट को शहर से बाहर मुंतकिल करने की मंसूबा बंदी शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का कहना था कि टिम्बर मार्केट, सब्जी मंडी, जनरल बस स्टैंड और ट्रक स्टैंड शहर से बाहर मुंतकिल किए जाएंगे। फिजिबिलिटी तैयार करने के लिए कमेटी बना दी गई। इन्होंने मजीद कहा कि हैवी ट्रैफिक का सबब बनने वाली मंडियों को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर आगे बढ़ना चाहती है। हमने कितनी मंडियां उसमें शिफ्ट करनी है, फेज वाइज, और प्रायोरिटी किसको देनी है, लेकिन इस सब प्रोसेस में असिस्टेंट कमिश्नर भी, मैं खुद भी, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एतमाद में लेंगे, उनके साथ बैठेंगे और उनकी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स और उनकी फैसिलिटीज़ को देखते हुए हम फैसला करेंगे इंशाल्लाह। आमिर खट्टक का कहना था कि हुकूमत आने वाले 50 के लिए जगह का तयन करेगी। एसी सिटी की सरबराही में कायम कमेटी में चीफ ऑफिसर, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और एमडीए के अफसरान को शामिल किया गया है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ रजा मलिक, मुल्तान। आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ मौजादाड़ी में अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया का राज है। विफाकी और सूबाई हुकूमत की 775 कनाल अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन ने 2 पटवारियों समेत 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मौजा तानवी में मुख्तलिफ बासर कब्जा ग्रुपों ने 446 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया। फसलें काश्त करने के अलावा पुख्ता तमीरात भी तामीर कर ली। दूसरी जानिब पटवारियों और रेवेन्यू हुकाम की मिली भुगत से जाली और बोगस अलॉटमेंट के जरिए बासर कब्जा माफिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट की 309 कनाल अराजी को भी अपने नाम करवा लिया। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट की 20 कनाल कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कब्जा माफिया ने कब्जा करके दुकानें तामीर कर ली। करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जमीनों के हेरफेर का मामला रेवेन्यू हुकाम और पटवारियों की मिली भुगत से मुमकिन हुआ। थाना एंटी करप्शन मुजफ्फरगढ़ ने महकमा माल के 2 पटवारियों
नजीर अहमद और अब्दुल रहमान समेत 46 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक मामले की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात और बड़े बाअसर अफराद के नाम सामने आने का इम्कान है। केस की तहकीकात जारी है। आपको बताएं कि ड्रीमलैंड पार्क में बेहतरीन सफाई को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्ठा के इजलास में गुफ्तगू। ड्रीमलैंड पार्क में सहूलियात और सफाई का तफसीली से जायजा लिया। कॉन्ट्रैक्टर्स को फौरी तौर पर पार्क को ओपन करने की हिदायत कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान को हिदायत की ड्रीमलैंड पार्क में बेहतरीन सफाई को यकीनी बनाया जाए। ड्रीमलैंड शहर का वाहिद पार्क है जहां बच्चों, खवातीन और नौजवानों के लिए तफरीही सहूलियात मौजूद है। कॉन्ट्रैक्टर फौरी तौर पर पार्क को ओपन करे और अगर ऐसा मुमकिन न हुआ तो मुतबादल इंतजाम किया जाए। डीसी ने ड्रीमलैंड पार्क में मजीद सहूलियात की फराहमी के बारे में लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत की। आपको बताएं, जहानपुर राजनपुर के मकीनों को मिलेगा अब पीने का साफ और मीठा पानी। दोआबा फाउंडेशन और WHH के इश्तराक से फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जहानपुर के मकीनों को मीठा और साफ पानी फराहम करने के लिए समाजी तंजीमों, दोआबा फाउंडेशन और WHH ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया। प्लांट का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अली और MPF फारूक अमानुल्लाह खान दरिशक ने किया। शुरका का कहना था कि साफ पानी की फराहमी से इलाके का न सिर्फ बुनियादी मसला हल हुआ बल्कि बीमारियों में भी कमी वाक़ होगी। हजारों की तादाद में लोग इससे मुस्तफीद होंगे क्योंकि फी कस हर घर में अगर आप पॉपुलेशन देखें, फैमिली साइज, तो मेरा ख्याल है 4-5 हज़ार से ज़्यादा तो फौरी तौर पे लोग जो इससे मुस्तफीद होंगे और इस तरह के इनिशिएटिव आगे भी चलते रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ ये इलाके की बड़ी ज़रूरत है। इस इलाके में एक बड़ा की इनिशिएटिव है। हम चाहते हैं कि और इनकी तादाद बढ़े। जितनी भी पिछला दौर आपने देखा है जी, जितनी भी अपना वाटर सप्लाई स्कीम थी सारी की सारी नाकारा हो गई थी, उनके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटीज में से हैं, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहाल भी हो चुकी हैं और कुछ इंशाल्लाह के ऊपर बहुत जल्दी बहाल हो जाएंगी। इलाका मकीनों का कहना था कि साफ और मीठे पानी की फराहमी से उनकी रोजमर्रा की मुश्किलात में वाज़ेह कमी आएगी। कैमरामैन खिजर अब्बास के साथ खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। चमकेगा लैया मुहिम अरूज पर मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत गिलानी, डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने तज़िया और आयश के बाद जिना पार्क का इफ्तिताह कर दिया। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट देखिए। पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए अमली इकदाम जारी। शहर के वस्त में मौजूद जिना पार्क तज़य्युन और आराइश के बाद शहरियों के लिए खोल दिया गया। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत गिलानी, डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने इफ्तिताह किया और शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि चमकेगा लैया मुहिम के तहत पार्क को खूबसूरत बनाया जा रहा है। ये जिना पार्क बड़ा पुराना पार्क है और ये तकरीबन 20 साल के बाद इसकी रेनोवेशन की गई है। झूले ठीक किए गए हैं, लाइट्स लगाई गई हैं, पानी का इंतजाम किया गया है, दीवारें टूटी हुई थी उनको मरम्मत किया गया, उसको ब्यूटीफाई किया गया है। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत गिलानी का कहना था कि शहरियों को सैर व तफरीह की बेहतरीन सहूलियात के लिए पार्क को बेहतर किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पार्क का बाकायदा इफ्तिताह किया है। अहले मोहल्ला, अहले इलाका सारे खुश हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यहाँ पे झूले बच्चों के वो टूटे हुए थे, वो दोबारा बनाए गए हैं, नए लगाए गए हैं। इसके अलावा दीवारें टूटी हुई थी, उन दीवारों को दोबारा बनाकर और उन पे रंग पेंट किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रीनरी के हवाले से बेंचेस लगाए गए हैं, झूले लगाए गए हैं बच्चों के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर लिया नियाज अहमद का कहना था कि पार्क में मजीद सहूलियात दी जाएंगी। सर ने ये काम मुझे सौंपा हुआ था, मैं इसकी निगरानी भी करता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इस सिलसिले की पहली कड़ी है, हमने पहला स्टेप अबूर कर लिया और ये पार्क को खूबसूरत बना दिया गया। अफसरान ने म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकारों को हिदायत की कि पार्क को बेहतर रखने के लिए इकदाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने कहा कि कश्मीर पार्क का भी जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही लैया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम का जायजा इजलास हुआ। CO हेल्थ डॉक्टर खलील अहमद ने ब्रीफिंग दी। पोलियो मुहिम के पहले रोज 3416 खाना बदोशों समेत बच्चों को कतरे पिलाए गए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम का जायजा इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक का कहना था कि घरों में मौजूद न होने वाले 16,225 बच्चों को तलाश करके कतरे पिलाए जाएंगे। माइक्रो प्लान के मुताबिक टीमें काम करें और तमाम टारगेट बच्चों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन पिलाई जाए। फराइज में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले के दाखिली और खारजी मकामात और ट्रांसपोर्ट स्टैंड को खुसूसी फोकस किया जाए। CEO हेल्थ डॉक्टर
डॉक्टर खलील अहमद ने बताया पहले रोज 2,32,526 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट मुकर्रर किया गया था। पहले रोज 94% बच्चों को कतरे पिला दिए गए। खाना बदोश बस्तियों और बच्चों का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। पोलियो मुहिम के पहले रोज 2,70,270 OPV डोज भी दी गई। बहावलपुर में भी पोलियो मुहिम जारी है। पहले दिन 133 वालिदैन ने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की मुहिम के दौरान रिफ्यूजल मुकम्मल करने की यकीन दहानी। में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। पहले रोज 133 वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बहावलपुर सैयद तनवीर शाह का कहना था कि मुहिम के दौरान ही रिफ्यूजल केसेस मुकम्मल कर लेंगे। रिफ्यूजल है इंशाल्लाह हम कैंपेन के एंड तक कवर कर लेंगे। अभी 133 का फिगर आज आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये रूटीन में है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में कवर। जो बहुत हार्ड लाइन किस्म के रिफ्यूजल से बहावलपुर के वो कवर हो चुके हैं। डॉक्टर तनवीर शाह का कहना था वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। जो बच्चे पहले कतरे पी चुके हैं उन्हें भी जरूर पिलाएं। वालिदैन के लिए खास तौर पे मैसेज है कि अगर बच्चे ने पिछले 4-5 दिन में भी कतरे पिए हुए हैं अपने रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के सिलसिले में, तब भी इस कैंपेन में लाजमी पिलवा लें। बाज़ लोगों ने रिफ्यूज़ल में वो लोग भी काउंट हो गए हैं जो सिर्फ इस गलतफहमी की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि जी हमारे बच्चे ने तो 2 दिन पहले पिए थे, अब हम नहीं पिला रहे। बहावलपुर में पहले रोज 2 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। जिला भर में 7,29,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। आपको बताएं पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मनों के खिलाफ मुतहरिक। दूध, मसालाजात, सोडा वाटर, बेकरी मसनूआत के 13 यूनिट सील, 445 लीटर दूध, 864 खराब अंडे, 50 किलो मसाले, 156 लीटर सोडा वाटर, 90 लीटर बेवरेजेस, 20 किलो सॉस तलब कर दिया। अथॉरिटी की तरफ से की जाने वाली मजीद कार्रवाइयों में 190 साशे गुटखा, 16 लीटर आगाज घी, 15 किलो खुश्क पाउडर, 90 किलो खाम माल पापड़, 25 किलो सफेद आटा, 35 किलो फाइनल प्रोडक्ट बरामद किए गए। खानेवाल में इशफाक मिल्क पॉइंट को मिलावटी अशिया की वजह से सील कर दिया गया, जबकि मुल्तान से नासिर बेकरी, खानेवाल से मेहर सकलैन खराब अंडों के इस्तेमाल पर सरबमोहर की गई। विहाड़ी प्योर मिल्क शॉप को ग़िज़ाइयत कम होने पर सील कर दिया गया। दीगर खबरों में आपको बताते हैं सीपीओ की हिदायत पर एसपी सिटी मुल्तान डिवीजन जावेद खान ने थाना हरम गेट में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इसी हवाले से तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। एसपी सिटी मुल्तान डिवीजन जावेद खान ने थाना हरम गेट में खुली कचहरी का इनेकाद किया। साइलिन के मसाइल सुने। एसडीपीओ हरम गेट यूसुफ हारून और एसएचओ मोहम्मद अशरफ, सादिक हुसैन और मोहम्मद आसिफ भी इनके हमरा थे। मैसेज यही देंगे कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो उसके लिए मेरे दरवाजे भी खुले हैं और पुलिस हर उस आदमी की जिसके साथ ज्यादती बात सुनने के लिए हर वक्त तैयार है। एसपी सिटी ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल सुनना और हल करना है। जराइम के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। ये जो खुली कचहरी है इससे मसलन जो आम बंदे होते हैं जिनकी सुनाई नहीं होती और मसला होता है, इसमें मसला अपना ये कि बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने इकदाम उठाया है एसपी सिटी साहब ने और उनको मौका दिया है जो उनके जराइम है जो मसले आपके पेश बताएं, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत एक अच्छा इकदाम है और बहुत सारे लोगों के ये मसले मसाइल हल भी होंगे। एसपी सिटी ने कहा कि जुर्म से मुतालिक फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें। पुलिस से मुतालिक भी मसले को मैरिट पर हल किया जाएगा। ताजिर बिरादरी ने अपने तहफुजात से आगाह किया और खुली कचहरी के इकदामात को सराहा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। बहावलपुर में कपास की फसल पर बीमारियों का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया, काश्तकार परेशान हैं। कपास की फसल में बार बार स्प्रे के बावजूद सफेद मक्खी और दीगर बीमारियां कंट्रोल नहीं हो रही। काश्तकारों का कहना है कि गैर मायारी बीज ही कपास की तबाही का सबब है। इस कंट्रोल के लिए जो हम जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम नहीं कर रही। 8 से 9 स्प्रे हमने वाइट फ्लाई के किए हैं लेकिन स्टिल उसका कोई रिजल्ट नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक भरमार लगी हुई है बीज की। जो ब्रीडर हैं बड़े बड़े उनका रोज एक नया बीज आता है मार्केट में। कोई बीज ऐसा नहीं है कि जो आपको अब ये है कि गर्मी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि रेजिस्टेंट नहीं है, गर्मी के हिसाब से रेजिस्टेंट नहीं है। काश्तकारों का मजीद कहना था कि जहां प्राइवेट सीड कंपनियों ने गैर मायारी और नाकिस बीज से करोड़ों कमाए हैं, वहीं सरकारी इदारों में बैठे कॉटन ब्रीडर्स भी नाकिस बीज फरोख्त कर रहे हैं। चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से कपास की काश्त और पैदावार दोनों कम हो रही है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। और मुल्तान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 32वीं सालगिरह की तकरीब मकामी होटल में मुनाकिद की गई। सालगिरह का केक रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी अकलियती विंग नदीम आमिर जीवा ने काटा। इनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवानों की आवाज है और हम सब इनके साथ हैं। जो लीडरशिप है हमारे लिए फख्र है और आज हमारे लिए बहुत एक काबिल फख्र दिन है कि आज हम उनकी सालगिरह का केक काट रहे हैं। और क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान में वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने ये कहा और जिनका ये जो ख्याल है, नजरिया है कि मैं पाकिस्तान का सदर और वजीर आजम मिनॉरिटीज में से देखना चाहता हूँ। सालगिरह की तकरीब में सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, डिवीजनल सदर खालिद हनीफ लोधी, सिटी सदर नसीम लाबर, सेक्रेटरी जनरल राव साजिद, चौधरी इमरान, आरिफ शाह समेत पार्टी अहदेदारान और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। कारकुनों की जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आमरों के खिलाफ जद्दोजहद की है और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं और हम अब उम्मीद करते हैं कि हमारा चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब वो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन नौजवान की आदत है, इंशाअल्लाह ताला वो अपनी वालदा का और अपने नाना के आलम को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में नारे भी लगाए गए और दराज उम्र के लिए दुआ भी कराई गई। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। रहीम यार खान के डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू 1122 स्टेशन में इंटर तहसील रेस्क्यू चैलेंज मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। के डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू 1122 स्टेशन में नेशनल रेस्क्यू चैलेंज के हवाले से होने वाले इंटर तहसील मुकाबलों में चारों तहसीलों की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर की जेर निगरानी मुकाबले हुए। रेस्क्यूअर्स के दरमियान फायर फाइट समेत दीगर कैटेगरीज के मुकाबले हुए। मैं एज ए रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर तीनों अजला का मैंने विजिट किया है और उनकी तैयारियों का मैंने जायजा लिया है। इस साल टफ टाइम मिलने जा रहा है रहीम यार खान को, क्योंकि भावल नगर की टीम और भावलपुर की टीम को भी मैं मोटिवेट करके आया हूँ कि जी आपने टाकरा देना है रहीम यार खान की टीम को। तो इंशाल्लाह ताला इस साल जो एक टीम निकल के जाएगी यहाँ से और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। इमरजेंसी ऑफिसर आदिल रहमान कहते हैं कि 9 साल से होने वाले नेशनल रेस्क्यू चैलेंज के मुकाबलों में 5 मरतबा जिला की रेस्क्यू टीम ने जीत हासिल की। ये 9th रेस्क्यू चैलेंज है और माशाल्लाह हमारी 8 पिछले हुए उसमें से 5 बार के विनर हमारी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान है। तो इसी लेगेसी को हम आगे कंटिन्यू रखते हुए हम ये चाहते हैं कि जो रहीम यार खान की टीम है वो अगला नेशनल रेस्क्यू चैलेंज भी विन करे। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर कहते हैं कि तहसील सतह का मुकाबला जीतने वाली टीम ही इंटर डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में हिस्सा ले सकेगी। तहसील सतह के रिजल्ट भी जल्द ही सामने आ जाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।